इक्वेशन की नेमिंग हो सकती है। Good morning, ma'am.
Good evening, Vishruth. Good evening, ma'am. Good evening, Anika.
Namaste, ma'am. Yes, namaste. So let's start, okay? लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट वाटर, राइट, कि आपकी बॉडी में कितना वाटर होना चाहिए एंड व्हाट इज ऑप्टिमल हाइड्रेशन. यू अंडरस्टैंड? एनी डाउट्स फ्रॉम दैट पोर्शन? No, ma'am. सो नाउ टेल मी, अगर मैं बहुत सारा पानी पी लूं तो क्या होगा? वैसे भी बोलते हैं ना कि पानी पीना चाहिए. सो व्हाट विल हैपन इफ आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर? Ma'am, excessive water will get stored in our kidney. Okay, and then? Ma'am, it can cause damage. What kind of damage? Ma'am, it can cause kidney damage. What about the others? Only Anika will answer today. Ma'am, and toxicity. Toxicity. Which toxicity? Yes, Vishnu, tell me, you were saying about toxicity. Ma'am, toxicity. Ma'am, of water. So if we drink a lot of water, it causes water toxicity. Hanji, Anika? And I was also saying the same thing. Okay, very good. So, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज बहुत सारी ले लें और वो हमें नुकसान पहुंचाए, वी कॉल इट वाटर टॉक्सिसिटी. इसका मतलब इफ अ पर्सन इज ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर एंड उसे वाटर टॉक्सिसिटी हो गई, इसका मतलब है कि उसे कुछ ना कुछ फिर प्रॉब्लम भी होगी, राइट? सो लेट्स जस्ट राइट डाउन फर्स्ट की व्हाट हैपेंस. Ma'am, you have to write in points. Have to write this question and then this answer, okay? Okay, ma'am. Kabir, I'm not saying anything. You just have to note this down, okay? Done, ma'am. Okay.
All right. Now moving on. No, Let's ma'am, talk- wait. Natik, mute yourself. Now let's write down about water intoxication, okay? पहले हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे, ऑल राइट? मैम अपनी वाटर की बात क्या लिखा है? वाटर इंटॉक्सिकेशन. ओके मैम. मैम आपने वी के बाद डिस्टर्ब ही लिखा है ना? हाँ जी. ओके मैम. And what's after disturb the? इलेक्ट्रोलाइट. Okay. Ma'am, what's after content of the? कंटेंट कहाँ पे पढ़ रहे हो आप? Disturbs the electrolyte balance of our body. अच्छा, mineral content of the blood. BL है साथ में, ठीक है? BLOOD. Blood. मैम आपने सर्वर की बात क्या लिखा है? बाद
severe symptoms, symptoms. Okay, ma'am. Then मैम आपने आज के बाद क्या लिखा है? नॉशिया का मतलब होता है आपको चक्कर आना और अनकॉन्शियस हो जाना, दैट इज कॉल्ड नॉशिया. ओके मैम. ma'am written. Okay, great. Ma'am, ma'am, I couldn't attend last class. Can anyone send the notes or the recording of last? Sure. So today let's do one thing. आज के notes नैतिक will post on the group. ठीक है नैतिक? Okay ma'am. So post all the notes of this chapter, right? Last class also and today's class also. So that अगर किसी का Excuse me ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, I have joined on. Ma'am, I have joined 10 minutes late. So, ma'am, what we have done? आपने वो नोट किया था क्वेश्चन, what happens if we drink too much water? No, ma'am. ओके हमने वहीं से स्टार्ट किया था बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स टुडे जॉइंड लेट. चलो नो प्रॉब्लम, एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल शो इट टू यू. आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो उसके लिए, ठीक है? हाँ विश्रुत बोलो. या चलो एक काम करते हैं नैतिक, यू डोंट पोस्ट योर नोट्स टुडे. आज हम विश्रुत को ये बारी देते हैं. Okay, ma'am. We'll post your notes, okay, so that Naitik and everyone can cope up. Okay, ma'am. सबने नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. see, let's talk about water intoxication. See what happens is जब आप बहुत सारा पानी पी लेते हो तो क्या होता है, देखो there is water in your blood, but along with water there are other minerals also. There are a lot of elements in your blood, sodium, potassium, sulfur, copper, iron. बहुत सारी चीजें आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? और इनका एक बैलेंस रहता है. देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट? नाउ इफ यू आर ड्रिंकिंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, आप बहुत ज्यादा पानी बढ़ा रहे हो बॉडी में, लेकिन मिनरल्स तो उतने ही रह गए ना, मिनरल्स तो नहीं बढ़े. सो व्हाट विल हैपन इज जो बैलेंस बना हुआ था ब्लड के अंदर मिनरल और वाटर का, वो अब डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज वाटर बहुत सारा हो गया है. एंड ड्यू टू दैट, whenever balance of the body is disturbed, it will lead to certain symptoms. कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी. तो जब हम पानी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं अपनी बॉडी में, what happens to us is हमें चक्कर आने लगेंगे, we will feel like we're getting unconscious, vomiting हो जाती है, बहुत जोर से headache होगा. और अगर in some cases if the person has already had a lot of water और उसकी बॉडी में बहुत देर से वो बहुत सारा पानी है, तो क्या हो सकता है वो इंसान कोमा में चला जाए, या फिर कई बार बहुत सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है, राइट? सो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप वाटर भी पी रहे हो तो एक लिमिट में. जैसे क्यों बोलते हैं डॉक्टर्स कि आपको 2 लीटर्स ऑफ वाटर पीना चाहिए? डॉक्टर्स ये क्यों नहीं कहते कि खूब सारा पानी पियो, जितना भी मतलब भर के 2 लीटर आप बार बार पिया करो, ऐसे नहीं बोलते ना वो कभी भी. वो आपको एक लिमिट में पानी पीने को बोलते हैं. सो दैट इज द रीजन.
Do you understand? एक्सक्यूज मी हाँ विश्रुत, मैम कि पर डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि आपको पानी पीना चाहिए कि उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है और आपको स्वेटिंग भी ज्यादा होती है. हाँ राइट. देखो दे डू टेल यू बिकॉज वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट, बट दे विल नेवर टेल यू टू ड्रिंक अनलिमिटेड वाटर. ठीक है ना? तो आपको ये बोलेंगे कि आप पानी पियो, बट दे विल नेवर टेल यू कि आप बहुत सारा ही पानी पी जाओ, राइट. आपको वो हाइड्रेटेड रहने को बोलते हैं कि आप अपनी बॉडी में पानी की कमी मत होने दो. ओके, सो देयर इज अ नाउ लेट अस टॉक अबाउट what happens जब कभी किसी को डायरिया हो जाता है. डायरिया मतलब लूज मोशंस. सो व्हेन दैट इज द केस, जब वैसी सिचुएशन होती है, तो जब आप डेफिकेट करते हो द फीकल मैटर इज वेरी वेरी लिक्विड, राइट. जब वो फूड आप खाते हो वो एज इट इज ही पास आउट हो जाता है विदाउट बीइंग कंप्लीटली डाइजेस्टेड. ओके, इन दैट केस देखो आपकी बॉडी से बहुत सारा वाटर लॉस हो रहा है ना, right? A lot of water along with a lot of minerals is being lost from your body. इसीलिए तब क्या करते हैं डॉक्टर्स, आपको ORS देते हैं. पिया है ना सबने ORS? पानी के अंदर मिक्स करके ORS पीने से आपकी तबीयत बेटर हो जाती है, वरना हाउ डू यू फील? यू फील वेरी वेरी वीक. Okay, so in order to avoid getting weak, in order to stay healthy, the doctors will give you ORS during diarrhea situation or even when you are having vomiting. क्योंकि vomiting में भी you eliminate a lot of water. Vomit भी तो liquid होती है ना, तो उसमें भी बहुत सारा पानी और बहुत सारे minerals आपकी body से बाहर चले जाएंगे. ठीक है, तो question लिखो. Why ORS is given when someone is doing a lot of vomiting? Is यहाँ नहीं आएगा. Why is ORS given? ठीक है. हाँ विश्रुत, you are saying something? मैम कि शायद ओआरएस को हम शायद डाइजीन भी बोलते हैं. डाइजीन अलग चीज होती है. ठीक है, डाइजीन आप तब लेते हो जब आपको एसिडिटी हो रही हो, राइट. जैसे आपको अभी तो आप छोटे हो, बट जो मम्मा पापा वगैरह ना, उन्हें होता है कि पेट में से जो एसिड होता है ना वो आता है ऊपर तक, तो दे फील अ वेरी अनकंफर्टेबल बर्निंग फीलिंग. उसके लिए डाइजीन होती है, टू कंट्रोल दैट एसिडिटी. ओके मैम.
मैम डन। ओके ग्रेट ग्रेट, बाकी सब भी जल्दी से करो। Done, ma'am. डन, सबने कर लिया? नो, कर लो। विश्रुत, आर यू डन नोटिंग? एक्सक्यूज मी मैम, आप बोलो। मैम कि आपने और के बाद क्या लिखा है? और के बाद कहाँ पर? मैम सेकंड लाइन। मैम मैं डायरिया। ओके मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। चलो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है? वील वेट फॉर यू। ओके मैम। डन। डन एवरीवन, आगे चले? नो मैम। ओके करो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? No, ma'am. व्हाट अबाउट द अदर्स? सिर्फ अनिका को कोई डाउट नहीं है, मतलब बाकी बच्चों को समझ नहीं आ रहा? नो मैम नो डाउट। मैम नो डाउट।
चलो, so shall we proceed now? Vishnu, done noting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. we will talk about minerals. ठीक है, अभी जैसे हमने बात की कि ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर दीज मिनरल्स. ओके, सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स. ओके, दो तरह की कैटेगरीज हैं. कुछ मिनरल ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, whereas कुछ मिनरल्स ऐसे हैं which are needed in a very very small amount. Okay, so let's make a flow chart quickly. जो मिनरल्स ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैक्रो या फिर मेजर मिनरल्स. हाँ विश्रुत बोलो. मैम की लास्ट वर्ड उसमें वीकेंड था ना? हाँ जी. ओके मैम. वीकेंड. व्हाट? हाँ हाँ, वीकेंड. वीकेंड मतलब जो वीक हो चुका है. ठीक है, Okay, ma'am. वीकेंड सैटरडे संडे वाला नहीं. मैम मैम वीकेंड. वीकेंड मैं लिख देती हूँ, ये देखो, वीक एंड, वीकेंड. ठीक है, ओके मैम. एंड द अदर वन आर माइक्रो मिनरल्स जो हमें कम अमाउंट में चाहिए. वी ऑल्सो कॉल देम एज ट्रेस मिनरल्स. ट्रेस का मतलब क्या होता है? ट्रेस का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा. राइट, सो लेट्स राइट डाउन देयर definitions. Okay, then the example of all the macro minerals include calcium, phosphorus, sodium, potassium, and magnesium. Whereas the micro minerals include iron, iodine, fluoride, and zinc. मैम आपने सोडाइन की बात की लिखा है? सोडियम के बाद पोटेशियम. मैम Mom, I don't have space for the examples. Next page. Ma'am, iodines in soils there are large amount of iodine, so that's why doctors say don't eat too much salt. See, basically
जो सॉल्ट होता है ना उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड बहुत सारा होता है, ठीक है। तो देखो, सी यू नीड सोडियम इन लार्जर अमाउंट्स, दैट इज फाइन, बट अगर आप एक लिमिट से ज्यादा सोडियम खा लोगे वो भी आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। आयोडीन जो सॉल्ट में होता है दैट इज नॉट इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, ऑलराइट। सो डॉक्टर्स आपको इसलिए बोलते हैं सॉल्ट ज्यादा खाने के लिए, क्योंकि उनको आयोडीन से डर है, उनको सोडियम का ज्यादा होने का डर है, ठीक है। Okay, ma'am. Done, ma'am. मैम आपने आयोडीन के बाद क्या लिखा है? आयोडीन के बाद फ्लोराइड। मैम मैम डन। एंड ओके ओके, सबने कर लिया? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम। ग्रेट ग्रेट। मैम लास्ट का वर्ड जिनिक है ना मैम? हाँ हाँ, जिंक है। मैम Okay, now we will talk about the functions of all, you know, the minerals. सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन के बारे में। What is the function of iron? It is required for making hemoglobin in the blood. जिसके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होता है उसके ब्लड में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, एंड दैट पर्सन इज ऑलवेज टायर्ड, ठीक है। हीमोग्लोबिन मतलब जिसको हम अनीमिया भी बोलते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म? अनीमिया हो गया उस बच्चे को या फिर उनके घर में उसे यस anemia- मैम। हाँ, तो अनीमिया का मतलब होता है द हीमोग्लोबिन इज लेस इन देयर ब्लड एंड दोस पीपल आर ऑलवेज वेरी वीक एंड वेरी टायर्ड। तो इसीलिए डॉक्टर्स उन्हें फिर आयरन की टैबलेट्स खाने के लिए बोलते हैं कि आप रोज एक टैबलेट खाओ आयरन की, तो आपका अनीमिया जो है वो ठीक हो जाएगा, राइट। एंड व्हाट आर द फूड्स दैट आर आयरन रिच? दिस इज आर्टिचोक। ये एक ना एक्सोटिक फ्रूट टाइप होता है। देन रेड मीट, एग योक्स, parsley, broccoli, beans, potato and spinach. These are all iron rich sources. Spinach का तो सबको पता है ना, पॉपाय खाता था, स्पिनच खाते ही कितनी सारी पावर आती थी उसमें, राइट? देखा किसी ने पॉपाय द सेलर मैन? Yes, ma'am. मैंने देखा। देखा है? वैसे आप लोग काफी छोटे हो ना, आई थिंक आप लोगों के टाइम में नहीं आता होगा। When I was little, I used to watch, you know, all those cartoons. So he used to eat the spinach और जल्दी से उसके अंदर पावर आ जाती थी और फिर वो मारता था the villain. चलो जल्दी से लिखो about the function of iron and all the things in which iron is present. मैम Yes? हाँ बोलो बोलो। आर्टिचोक मैम ये वेजिटेबल है फिर फ्रूट? तरह का फ्रूट होता है। ओके मैम। And it is bitter. मैम इट इज मैम इज इट अ लोटस स्टेम? मैम इज इट लोटस स्टेम? No, no, it's a different one. ओके मैम। Done. Done, ma'am. डन मैम। ये जो आपका आर्टिचोक है ना, दिस इज लाइक कैबेज, ठीक है। जैसे आप कैबेज खाते हो ना, Yes. यस मैम। हाँ, तो ये आर्टिचोक भी अंदर से वैसे ही होता है। व्हेन यू कट इट, जैसे अगर मैं इसको ऐसे करके कट करूंगी ना लाइक दिस, तो ये कैबेज के जैसा है, अंदर से ऐसे ऐसे करके होता है। ओके मैम।
तुम आर्टिचोक के अंदर लीव्स होती हैं। हाँ, ये लीव्स ही हैं सारी। देखो दीज आर ऑल बेसिकली ये फ्लावर है, ठीक है। दिस इज अ फ्लावर बट इट इज ईटन एज यू नो वेजिटेबल और अ फ्रूट। जैसे कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर भी एक फ्लावर ही है बट हम उसकी सब्जी बना के खाते हैं ना, इसी तरह से ये भी होता है। मैम मैं सारे एग्जाम्पल लिखूं? हाँ जी। ओके मैम। मैम ये एग योग की बात किया है, पार्सले। पार्सले, पार्सले, हाँ जी। ओके मैम। Done, ma'am. डन मैम। ये देखो, जब किसी पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन और आरबीसीज बहुत सारे होते हैं, व्हेन अ पर्सन इज नॉर्मल तो कितने सारे आरबीसीज हैं, बट जब उन्हें अनीमिया हो जाता है तो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। ये किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी। एग्जाम्पल ब्रोकली भी था ना लास्ट? हाँ, ब्रोकली था। नाउ नेक्स्ट वन इज आयोडीन। जब हम आयोडीन खाते हैं, इट इज हेल्दी फॉर आवर थायराइड ग्लैंड। आपने देखा है आपके गले में यहाँ पे ना, हियर द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट आयोडीन इन आवर डाइट, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनको अपनी डेवलपमेंट के लिए आयोडीन चाहिए। अगर हमारी डाइट में आयोडीन कम होगा तो क्या होगा? दी थायराइड ग्लैंड्स विल स्वेल, ओके, एंड दे स्वेल सो मच दैट द नेक ऑफ अ पर्सन बिकम्स swollen। तो जैसे ये पर्सन का फेस है, ठीक है, दिस इज द फेस ऑफ अ पर्सन, तो उनकी नेक ऐसी हो जाती है गोल, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज गोइटर, राइट। ये किन किन चीजों में मिलता है आयोडीन? हमें ड्राइड सीवीड के अंदर, कॉड फिश, योगर्ट, बेक्ड पोटैटो के अंदर, एग्स में, टूना, टूना इज आल्सो फिश, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे फिश, टर्की, क्रैनबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज, और नीचे लिखोगे डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? डेफिशिएंसी गोइटर, ओके, एंड गोइटर में डन डन, ओके ओके। मैम। वैसे हम ड्राइड सीवीड्स को खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, खाने की तो चीज है। मैम यू हैव टू राइट दिस। यू हैव टू राइट दिस। मैम हाँ, yes Anika, you can add the example of iodized salt also. Ma'am, written. Okay. What about the others?
मैम आपने टर्की के बाद क्या लिखा है? क्रैनबेरीज। मैम Done, ma'am. डेफिशिएंसी भी लिखी है ना सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम आपने ब्रैकेट में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? थायराइड। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो विश्रुत, व्हाट आर यू आस्किंग? मैम क्या आपने गोइटर के बाद क्या लिखा है? थायराइड, ये लिखा हुआ है ना, थायराइड ये लिखा है। Done, मैम। ओके ग्रेट। Okay, done everyone? Yes, ma'am, I did it first. Okay, see, this is what happens when goiter occurs. Okay, जब किसी को goiter हो जाता है तो इस तरह से swelling होती है उनकी neck में। और ये कहाँ पे ज्यादातर होता है लोगों को? हिली एरियाज में, because see in hilly areas you know the things or the salt lacks iodine. iodine की कमी होती है salt में वहाँ पे, इसीलिए हिली एरियाज के लोगों को गोइटर ज्यादा होता है। इनफैक्ट आप भी जो सॉल्ट खाते हो उसको स्पेशली आयोडाइज किया गया। आपने देखना अपने घर में जो टाटा सॉल्ट का पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी कि उसमें आयोडीन हैज बीन एडेड सेपरेटली। ओके, हाँ विष्णु, डू यू हैव अ क्वेश्चन? नो मैम। ओके ओके, योर हैंड वाज रेज्ड ना, इसलिए। चलो, इसके बाद हमारा कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट रह गया? नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लोराइड। फ्लोराइड जो होता है इट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन वाटर, और आपको वहीं से रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो भी जाती है काफी हद तक। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टीथ एंड बोन्स। एंड व्हाट एल्स डज इट डू? अगर आपके दांतों में कभी कैविटी हो रही है या आपके दांत डिके हो रहे हैं, उसे भी कम करने में फ्लोराइड हेल्प करता है। बट देखो अगेन, अगर कोई चीज ज्यादा अमाउंट में ले ली जाए तो वो नुकसान भी करेगी। सो द टॉक्सिसिटी ऑफ फ्लोराइड कॉजेज द you can say breaking और decaying of teeth। यानी अगर आप एक सही अमाउंट में फ्लोराइड रहते हो तो वो आपके दांतों को हेल्दी बनाएगा, ठीक है, इट विल कीप योर टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। बट अगर आप ज्यादा फ्लोराइड ले लोगे तो वही फ्लोराइड आपके टीथ को वीक कर देगा, आपके टीथ को खराब करने लगेगा, ठीक है। के बाद रिलीज लिखा है। REDUCE। ओके मैम। Ma'am, written. ओके वेरी गुड। सोर्सेस क्या है फ्लोराइड के? रेजिन यानी कि किशमिश, वाटर, ग्रेप्स,
क्योंकि ग्रेप्स से ही बनते हैं ना रेजन, तो ग्रेप्स रेजन्स दोनों हो गए. क्रैब्स एंड देन आपका ये ऑरेंज. आपने 2 के बाद क्या लिखा है? मैम टॉक्सिसिटी का 2. टॉक्सिसिटी, डार्कनिंग, डार्कनिंग, DARKEINING. ओके मैम. Done, ma'am. Done, ma'am. Okay, great. Ma'am, does moss meat include fluoride? कह सकते हैं it does have some amount of fluoride, but the amount of fluoride is higher in orange. Okay, ma'am. Now let's talk about zinc. अब जो zinc है that is very very important for your immunity. यानी कि जो आपका immune system है which fights the diseases, जब भी आपको cold होता है तो अपने आप ठीक हो जाते हो ना, that is because of immunity. आपकी body उसको मार रही है. तो उस इम्यून सिस्टम को और ज्यादा बिल्ड करने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदर देन दैट, कभी जब आपको चोट लगती है और आपको यू नो देयर इज अ कट और देयर इज अ वुंड, तो उसको हील करने के लिए भी जिंक बहुत ज्यादा हेल्प करता है, राइट? सो हेल्प्स इन वुंड हीलिंग. And what are the sources? Sources are oysters, cashews, almonds, chickpeas, beans. मैम हाँ जी. मैम आपने रेजिन्स क्या, मैम रेजिन्स का मीनिंग क्या होता है? Dried grapes. खाते हो ना ड्राई फ्रूट, दैट इज कॉल्ड रेजिन इन इंग्लिश. मैम आपने सोर्सेस के बाद क्या लिखा है? ये रेजिन ही तो लिखा हुआ है, सोर्सेस के बाद रेजिन्स. नहीं मैम, मैम सबसे नीचे वाले. ऑयस्टर्स, ऑयस्टर्स, मैम ऑयस्टर्स जो होते हैं वो सी फूड होते हैं. Ma'am, done. ओके. सी फ्रूट. फूड. देख ऑयस्टर्स ना बेसिकली शेल फिशेस होती हैं, ऐसे करके देखे हैं. यस मैम. यस मैम. पर्ल होता है, तो कई बार इनके बीच में छोटे छोटे फिशेस भी होती हैं जिन्हें हम खाते हैं. दीज आर कॉल्ड ऑयस्टर्स. ओके मैम. Ma'am, vitamin C also help in building immune system. So, vitamin C and zinc are kind of same to in the functions. See, in helping immune system, we can say that both of them are important, right? But that does not mean कि उन दोनों के function same है. अब जैसे if I ask you and let's say Kabir to push a car, ठीक है, मैंने आप दोनों को बोला कि इस कार को धक्का मारो, आप दोनों ही मार रहे हो ना धक्का उसको, because what you have to do is you have to get the car started. कार start नहीं हो रही थी तो धक्का मारोगे start हो जाएगी. But that does not mean कि you and Kabir are the same, है ना? Because you have different functions also, you do different things. But अभी आप दोनों ही same काम कर रहे हो. So that is one common thing between you two. Okay, are you getting my point? Yes, ma'am. Done मैम. And great.
चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और द मैक्रो मिनरल्स, यानी कि वो मिनरल्स जो हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं. सो सबसे पहले आ गया हमारा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. एक एक करके लिखेंगे या साथ में लिखना चाहते हो? चलो साथ में लिख लो. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का क्या फंक्शन है? टीथ एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना. तो यहाँ इससे पहले ऐड करेंगे स्ट्रेंथेन्स teeth and bones. And what are the calcium and phosphorus rich foods? All of these. जैसे देखो phosphorus में आ गया मीट, फास्ट फूड कट कर देना, ठीक है, चीज, मिल्क, कैंड फिश, कोला भी कट कर देना, एंड सीड्स. यहाँ पे देखो कैल्शियम रिच कौन से हो गए? अगेन चीज, आमंड्स, oranges. Then I think this is fish. This I think is these two pictures are a little out of that. चलो anyways, यहाँ पे let's write curd, क्योंकि curd is high in calcium. In fact कहते हैं कि अगर आप मिल्क और कर्ड कंपेयर करो तो कर्ड में ज्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है, ज्यादा कैल्शियम कर्ड में होता है. मैंने सुना था कि मिल्क में ज्यादा कैल्शियम होता है. नहीं, कर्ड में ज्यादा होता है कैल्शियम. मैम हमें सारे सोर्सेज एक साथ लिखने हैं अलग अलग करके? कैल्शियम अलग अलग करके लिख लो, क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग दिए हुए हैं ना, तो यू राइट देम सेपरेटली. ओके मैम. वो जो ग्रीन वाले हैं वो पीस हैं. आई थिंक कि पीज है, बाकी आई एम नॉट क्लियर. मुझे लग रहा है कि ये पीज ही है. राइट डाउन पीज ओनली. एंड दिस ओवर हियर इज स्पिनच. ये जो है ना ग्रीन पत्ते, दीज आर स्पिनच. And when a person has, deficiency of calcium, the condition is known as osteomalacia, यानी कि कैल्शियम की कमी. तो उसकी वजह से क्या होता है? The bones and teeth become very very weak. बहुत easily टूट जाएंगे. ओके और अगर कोई बहुत ध्यान से या धीरे से भी गिरेगा तब भी उनकी बोन्स ब्रेक हो सकती है. That is what happens in osteomalacia. अभी आप पहले ये वाला लिखो, उसके बाद I will scroll down. Osteomalacia is the deficiency of vitamin D. Yes. What is happening is कि जो कैल्शियम आपकी बॉडी में है that is being absorbed due to vitamin D only. तो दोनों की जो डेफिशिएंसी है वो सेम रहेगी, राइट? कैल्शियम नहीं होगा तो विटामिन डी भी नहीं होगा, तब भी ऑस्टियोमलेशिया होगा. विटामिन डी कम होगा, कैल्शियम नहीं होगा, तब भी ऑस्टियोमलेशिया होगा, राइट? So both of these have a similar function and a similar deficiency condition. Okay, ma'am. मैम रिटर्न. मैम रिटर्न. हाँ बोलो कबीर, I'm listening. मैम हमको फास्ट फूड और कोला नहीं लिखना ना? नहीं, आपको नहीं लिखना वो, ठीक है? चलो let's move further then, right? See, deficiency of calcium और vitamin D, ठीक है? देखो नॉर्मल बोन ऐसी होती है, बट जब ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है तो सी हाउ हैज द बोन बिकम, इट हैज बिकम मोर पोरस, क्योंकि अंदर से देखो खाली खाली हो गई, कैल्शियम है ही नहीं यहाँ बीच में आके फिल होने के लिए. दैट इज व्हाई द बोन बिकम्स वेरी वीक. अब देखो जैसे अगर मैं ये वाली बोन लूं जो अंदर से पूरी फिल्ड है और मैं खाली वाली ऐसी बोन लूं विच इज ब्लैंक और एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, विच वन विल बी इजियर टू ब्रेक? दिस वन, राइट, जो अंदर से हॉलो है.
So these bones become very very weak. लिख लो ये चीज, write down this thing. Ma'am, written. Done, ma'am. Ma'am, the bone in birds. Yes, what are you saying, Anika? Ma'am, the bones in birds are also hollow, so they are also very easy to break. See, in our bones the structure has to be like this, okay, बट जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो पहले से ही ऐसी बनी है कि वो अंदर से होलो है. इसका मतलब उनके जो बाहर की कवरिंग है दैट इज वेरी थिक एंड दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. बट इन आवर केस ह्यूमन बीइंग्स में बोन ऐसे बाहर से एक थिन कवरिंग होती है और अंदर से फिल्ड होती है, राइट. तो अगर ये अंदर से खाली हो जाएगी इजीली ब्रेक होगी, बट बर्ड्स में बाहर वाली लेयर इज very very strong and hollow from inside, right? Okay, ma'am. Done. Ma'am. Now we will talk about sodium and potassium. So sodium and potassium are very very important for the blood, for all the cells, और सेल से ही तो फिर टिश्यू बनते हैं, राइट. तो देखो हमने जब बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइट ब्लड में सही अमाउंट में होने चाहिए, देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस, तो तब हम बात करते हैं मेनली सोडियम और पोटेशियम की, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम क्लोरीन ये हमेशा हमारे ब्लड में बहुत हायर अमाउंट्स में प्रेजेंट रहते हैं, ओके. दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्कुलेशन एंड मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी. Okay, so note down this point and also the examples. Noted, everyone? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, written. Okay. Ma'am, written. Then, ma'am. Written. Ma'am, what is Curtis juice? Citrus juice. जो मतलब juice है the खट्टे- juice made out of all the citrus fruits, जैसे lemon, orange, मौसमी, आंवला, ये सारे citrus fruits होते हैं, ओके. मैम मतलब जो खट्टे फ्रूट्स. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ जी, बोलो बोलो. मैम जो मतलब खट्टे फ्रूट्स. खट्टे फ्रूट्स, ठीक है, उन्हें हम citrus बोलते हैं. ओके मैम. डन मैम. Then, ma'am. हाँ
Very good. Now let's talk about the other macro mineral which is magnesium. मैग्नीशियम जो है हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू नो दैट देयर आर नर्व्स दैट आर गोइंग अप टू योर ब्रेन टू कन्वे ऑल द मैसेजेस फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन्स. फिर ब्रेन से मैसेज लेके आपके सेंस ऑर्गन्स तक आते हैं. ठीक है, जब आप कोई हॉट प्लेट टच करते हो तो आपको कैसे पता कि वो हॉट है? बिकॉज आपकी स्किन ने फील किया और फिर वो सारा का सारा मैसेज जो नर्व्स थी वो ब्रेन तक लेके गई और फिर ब्रेन ने बताया कि ये हॉट है, हाथ पीछे कर लो वरना यू विल बर्न योरसेल्फ. एंड देन द मैसेज क्विकली कम्स बैक टू योर फिंगर एंड यू टेक योर हैंड बैक, राइट? सो for this dialogue between the brain and the sensory organs, the magnesium is very very important. अगर magnesium नहीं होगा तो हमारी जो nerves हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगी. ओके, अदर देन दैट हमारे बोन्स के लिए, हमारी मसल्स की मूवमेंट के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी होता है. ऑल राइट. एंड व्हाट आर दी मैग्नीशियम रिच फूड? ऑल द नट्स, जैसे आमंड्स हैं, पीनट्स हैं, बेसिकली ऑल द ड्राई फ्रूट्स हैव अ लॉट ऑफ मैग्नीशियम कंटेंट. स्पिनच, सोयाबीन, देन एवोकाडोज, पोटैटो, ब्राउन राइस. एंड देखो कैश्यूज यहाँ लिखा हुआ है ना, सो डू वन थिंग, rather than writing cashew and almond separately, you will write dry fruits. Okay, लिखो जल्दी जल्दी से. Ma'am, will we add one A after the Y of soyabeans? No, you can write soybeans also. It's all right. Okay. अगर लिखना चाहो सोयाबीन A लिख के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Both the spellings are correct. Okay, ma'am. Ma'am, written. Written? Okay. Written. Done, ma'am. Okay. Done, ma'am. Ma'am, move. Yes. Done ना? चलो आगे चलते हैं फिर. तो हमने सारे मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स कर लिए हैं. लेट्स जस्ट स्किप ओवर दिस वन. ओके, अच्छा यहाँ पे देखो. सी दिस इज हाउ योर टीथ बिकम. लिखा हुआ था ना डार्कनिंग ऑफ द टीथ. डार्कनिंग का क्या मतलब है? कि टीथ आपके डार्क हो जाएंगे. तो डार्क का ये मतलब होता है आपके टीथ के ऊपर अजीब से डार्क पैचेस हो सकते हैं. ऑल राइट. Then you will Ma'am, we get have to poor write eyesight. this. No, don't write this. Let's just discuss like this only. Okay, you will get poor eyesight. आपकी eyesight भी weak हो जाती है और आपकी spine, जैसे आप ऐसे खड़े होते हो ना अभी, you stand like this. But when your fluoride concentrations are low, अगर आपकी डाइट में फ्लोराइड कम है तो क्या होगा? आपकी बैक ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाओगे आप. ठीक है. अच्छा, हमने टॉक्सिसिटी के बारे में लिखा था ना. वी डिड नॉट राइट अबाउट डेफिशिएंसी. हाँ, सो डू वन थिंग, राइट दिस डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन. स्किप ओवर दिस पार्ट, राइट दीज पॉइंट्स.
Done, ma'am. Done, ma'am. Ma'am, done. Okay, okay. जिंक भी हम कर चुके हैं, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक क्विकली अबाउट द बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट, मुझे कौन बताएगा? Ma'am, in which we get all the nutrients our body requires. Good. We get all the nutrients our body requires. What about the others? सिर्फ अनिका आंसर करती है. कबीर सैनी, आप बताओ, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? Yes, am I audible? Kabir, Yes, you are audible. हाँ बताओ. So where is Kabir? Why isn't he responding? अब मैं ना ग्रुप में लिख दिया करूंगी कि कौन सा बच्चा ऑन करके क्लास में भाग जाता है एंड दैट स्टूडेंट डजंट रिप्लाई. अपने आप पेरेंट्स पढ़ेंगे ना तो उन्हें पता लग जाएगा कि बच्चे क्या करते हैं. Ma'am, can I tell? हाँ नैतिक, you tell me. Ma'am, a diet that consists all type of nutrients is called a balanced diet. A diet which has all the important nutrients. It has proteins also, it has carbohydrates also, fats also, minerals, water, and the right amount of roughage. That is called a balanced diet. Okay? So let's just quickly write down what is a balanced diet. Did you ask me something? हाँ बोलो. And did you ask अच्छा, me something? हाँ, yes, I asked you what is a balanced diet. Where were you? I was in the restroom. सब बच्चे यही बोलते हैं. मैं 10th क्लास तक पढ़ाती हूँ और अभी तक वो भी यही जवाब देते हैं. तुम तो फिर भी 6th में हो, सारे छोटे छोटे. You teach 10th class? Tell me, Kabir, what is a balanced diet? Chalo. Now you're back from the washroom, na? Yes, ma'am. No, the diet that contains all kinds of foods are called balanced diet. Okay, very good. अब हमको ये जिंक वाला लिखना है. नहीं, जिंक का हम लिख तो चुके हैं ऑलरेडी. ऊपर लिखा था ना. Okay, and a balanced diet of a person depends on their age, also on the area in which they live. जैसे अगर कोई person एक हिली रीजन में या हिली एरिया में रहते हैं, उनकी डाइट उस हिसाब से होगी. जैसे people living in hilly areas require more fats and more carbohydrates to keep their body warm.
सो उनकी बैलेंस डाइट वो होगी जिसमें ज्यादा फैट हो, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो, ठीक है। सिमिलरली डिपेंड्स ऑन एज ऑल्सो। अब जैसे यू पीपल आर स्मॉल, ओके, योर बॉडी इज स्टिल ग्रोइंग, so for you the balanced diet would be that it has a lot of fats, lot of proteins and also lot of vitamins. But आपके parents के लिए balanced diet अलग है, they require more carbohydrates, right, they require more proteins also, but the amount of fats in their diet should be less, ठीक है। तो उनके हिसाब से balanced diet वो है। So factors affecting balanced diet would include ठीक है। एंड यू नो देर आर आफ्टर दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। जैसे यू नो जब आप कुकिंग करते हो तो यू शुड मेक श्योर कि आप वेजिटेबल्स को इतना ज्यादा ना वॉश करो कि उनके सारे न्यूट्रिएंट्स ही निकल जाए वॉशिंग में, ठीक है। एंड यू मस्ट हैव सीन जैसे कई बार जब हम वेजिटेबल बॉईल करते हैं तो हम उस बॉइल्ड वाटर को भी यूज कर लेते हैं बाद में वेजिटेबल की ग्रेवी बनाने के लिए। So why are we using that water? Because जब हमने बॉईल किया था उस वेजिटेबल के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पानी न्यूट्रिएंट्स में हो गए थे, उस पानी में आ गए। तो अब मैं उस पानी को अगर फेंक दूंगी तो आई एम थ्रोइंग अवे ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। दैट इज व्हाई वी यूज दैट वाटर फॉर मेकिंग द ग्रेवी। Similarly, if I cut down all the vegetables and I cook them nicely, मैं mixed vegetable बना के खा लूं, so I will get all the nutrients of the वेजिटेबल्स। बट अगर मैं इन्हीं वेजिटेबल्स को बॉईल करूं, इन्हें निकाल कर इन्हें मैश करके पाव भाजी बना दूं, तो मैंने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट कर दिए, क्योंकि सारे या फिर आप कहोगे कि काफी सारे न्यूट्रिएंट्स तो बॉइल्ड वाटर में निकल गए, है ना। और उसके बाद से मैंने सारी वेजिटेबल्स को मैश भी कर दिया। सो आई एम कटिंग डाउन अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ऑल दोस। मैम व्हाट डू यू मीन बाय मैश? मतलब उन्हें क्रश करना। जैसे पाव भाजी में क्या होता है, सब्जी ऐसे अलग से तो नहीं दिखती ना, पूरी ग्रेवी ग्रेवी हो जाती है, स्लरी सी होती है। मैम पीसना। हाँ पीसना, यस। मैम आपने रीजन के बाद क्या लिखा है? क्लाइमेट। क्लाइमेट। हाँ जी, ओके मैम, डन। ग्रेट। Ma'am, why is it written red meat in the examples of string? Because all meat are red. No, red meat is basically a separate type of meat. ठीक है। 1 second, let me tell you. Give me a minute, okay? ओके, सो सी, जैसे जब आप चिकन खाते हो, ठीक है, आपने चिकन देखा, इट इज पिंक कलर, राइट। घर पे किसी के अगर चिकन बनता होगा तो देखा होगा ना आपने, जब वो रॉ होता है तो इट इज पिंक इन कलर। सिमिलरली मटन वगैरह भी जो होता है, शिवॉन होता है, दैट इज ऑल्सो लिटिल पिंक इन कलर। बट देयर आर सम एनिमल्स जिनका रॉ मीट इज रेडिश इन कलर, जैसे कि आपका पोर्क हो गया, बीफ हो गया, हैम हो गया, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम। हाँ जी, बिल्कुल ही बेबी पिंक टाइप सा होता है। क्या चीज बेबी पिंक होती है? मैम पॉर्क।
pork. Okay. हाँ, see, not all parts of the pork are baby pink. ठीक है, उसके कुछ organs, जैसे कई लोग liver खाना prefer करते हैं, मटन का भी, और आई थिंक चिकन में तो नहीं खाते, मटन में खाते, जिसे कलेजी बोलते हैं, राइट? सो दैट इज ऑल्सो रेड इन कलर. तो जो रॉ मीट इज रेड इन कलर ऑफ स्पेसिफिक एनिमल्स, उसे हम रेड मीट कहते हैं. ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ इट इज कॉल्ड व्हाइट मीट. ओके अनिका? यस कबीर? मैम आपने बॉडी के आगे क्या लिखा है? मास, बॉडी मास. फिर इसके बाद देखो, हम जो व्हाइट मीट किसको कहते हैं? व्हाइट मीट होता है जो पिंक कलर का होता है ना बेसिकली, मतलब रेड मीट के अलावा जितना भी बाकी मीट हुआ, चिकन हो गया, मटन हो गया, दैट इज ऑल व्हाइट मीट. ओके मैम. Now see, we divide our diet into 4 main categories. Okay, जब हम खाना खाते हैं तो हम 4 कैटेगरीज में उसे डिवाइड कर देते हैं. सबसे पहले आपका आ जाता है सीरियल ग्रुप, जिसमें आप दाल वगैरह खाते हो, पल्सेस है, राइस, चपाती, राइट? मैम ये हमने शायद बनाया था. आई थिंक हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाला बनाया था, ये नहीं बनाया था. हम यहाँ पे फूड की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. ठीक है. थर्ड आपका आ जाता है मिल्क ग्रुप, जिसमें आप सारे डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हो. एंड फाइनली द लास्ट ग्रुप इज प्रोटीन ग्रुप, जिसमें आप मीट वगैरह खाते हैं, मीट, पल्सेस, फिशेस, एग्स. ऑल राइट. जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो. मैम रिटर्न. लास्ट वाला क्या लिखा है? प्रोटीन. कहाँ पे? लास्ट वाला आपने प्रोटीन लिखा है? हाँ, प्रोटीन. ओके मैम. मैम सेकंड वाले में क्या लिखा है आपने? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. Okay. Done? Okay, great. Now, what are the healthy food habits? अच्छा कर लो. We're just discussing. ठीक है? What are the healthy food habits? आपको क्या-क्या healthy habits follow करनी चाहिए while you are eating, or before eating, or after eating? Ma'am, we should not watch TV while eating. Okay, we should not watch We TV should and wash our hands before eating. We should. food. Very Ma'am, nice. we should pray always before wash our eating. We should pray. What I'm talking about is कि आप health wise क्या ऐसी चीजें करते हो खाने के टाइम पे जो आपको health में benefit देंगी. So washing your hands before eating is important, क्योंकि अगर आप dirty hand से खाओगे तो infection होगी. Ma'am, we can, just put some layer on the food so that what we say, flies don't come around. Very good. So you can say that we should not leave the food uncovered. हमें food को कभी भी open नहीं छोड़ना चाहिए ताकि flies आके उसे contaminate करें, right? Then other thing is कि कभी भी हमें you can say stale food नहीं खाना चाहिए. Stale मतलब बासा, क्योंकि जब वो पड़ा पुराना हो जाता है, it develops some impurities. हाँ कबीर बताओ. Ma'am, I want
to ask that do like in restaurants the chefs cover the porks or meat whatever like non-vegetarian they make. So do flies eat pork like non-vegetarian? हाँ बिल्कुल। देखो फ्लाइज जो है ना वो हमारे फूड पे आके उसे खाती नहीं है, ठीक है। दे नेवर ईट आवर फूड व्हेन दे सिट ऑन इट। व्हाट दे डू इज दे पिक इट अप इन देयर हैंड्स एंड दे टेक इट टू अनदर प्लेस। ऑलराइट। Why? फ्लाइज का क्या काम है? दे पिक अप मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस एंड दे लीव इट एट अनदर प्लेस, क्योंकि फ्लाइज के लिए सब कुछ गार्बेज है। ओके, flies generally think that everything around them is garbage, so they will pick up the material and they will leave it at another place। ऐसे ही वो क्या करती है, आप इसीलिए बोलते हैं ना फ्लाइज को अपने खाने पे मत बैठने दो। why? because they will pick up the garbage from a dustbin और वो आपके फूड पे आके उसको छोड़ देंगे। उन्हें लगता है अच्छा ये दूसरी गार्बेज की जगह यहाँ पे इसको लाके छोड़ दो, ठीक है। दैट इज वाई यू मस्ट हैव सीन, कभी खाने पे अगर आपकी फ्लाई आए या पास में तो देखना शी रब्स देयर हैंड। वो जो फ्लाइज होती हैं दे विल रब देयर हैंड ऑफ and you know some black material will fall off on your food, so that Yes, is basically contaminating your food। then another point is कि हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड। देन वी शुड नॉट ओवर ईट। जितनी हमें भूख लगे या जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ही खाओ। जैसे कई बार हम टेस्ट में बहुत सारा खा लेते हैं, बट देन व्हाट हैपेंस लेटर ऑन, वी हैव स्टमक एक, हमें पेट में दर्द होता है। सो वी शुड नॉट डू दैट ऑल्सो। उसके बाद खाना खाने के बाद यू शुड वॉक अ लिटिल बिट और यू शुड एटलीस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। खाना खाते ही लेटना नहीं चाहिए, बिकॉज अदरवाइज द फूड विल नॉट बी डाइजेस्टेड। हाँ विश्रुत बताओ। मैम कि हमें नहाकर खाना खाना चाहिए? नहाकर नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहाकर, बट मेक श्योर कि आप जिस प्लेट में खा रहे हो वो प्लेट क्लीन हो। आप हैंड से खा रहे हो तो आपके हैंड्स क्लीन हो, ठीक है। मैम पर फिर डाइजेस्ट करने में आसानी रहता है, फिर थोड़ी मुश्किल होती है अगर आप नहाकर नहीं खाते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप नहाकर खाओगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, क्योंकि डाइजेशन तो अंदर से होनी है ना बॉडी की। अब अगर कभी आपको फीवर होता है और आप 2-3 दिन नहीं नहा पाते तो क्या खाना डाइजेस्ट नहीं होता? होता है ना तब भी। सो दैट इज एन इंटरनल प्रोसेस। नहाने का पर्पस ये होता है कि आप बिल्कुल क्लीन हो गए खाते वक्त, ठीक है। यू आर जस्ट ऑल क्लीन, आपके हैंड या आपके कोई भी बॉडी पार्ट डर्टी नहीं है। ओके मैम। हाँ कबीर बोलो। Nothing, I forgot to lower the hand. ओके ओके ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि हमें अपना खाना अच्छे से च्यू करना चाहिए, ठीक है। वी शुड ऑलवेज च्यू आवर फूड प्रॉपर्ली बिफोर swallowing it। क्लियर है? यस मैम क्लियर। चलो, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ जो बाकी बचा Excuse हुआ me, ma'am. होगा, हाँ बोलो। Ma'am, you said that I will tell you about that what I have not written. हाँ हाँ नैतिक, यस यस, 1 सेकेंड। एक्चुअली मैंने किसी बोला था, विश्रुत को बोला था ना, आई थॉट ही पोस्ट तो आप वहां से देख लोगे। चलो मैं आपको Yes, दिखा ma'am. देती हूँ। Ma'am, I have started writing from fluoride. तो राइट से लिखना स्टार्ट किए क्यों? पर No, आपने ma'am. ज्वाइन तो No, वाटर ma'am. इंटॉक्सिकेशन Ma'am, water intoxication. Ma'am. हाँ, उससे पहले बस यही लिखा था हमने, व्हाट इफ वी ड्रिंक टू मच वाटर। Okay, ma'am. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एंड बाद में लिखते रहना। Ma'am, screenshot I have done. ठीक है, ओके। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. गुड नाइट एवरीवन, बाय। Bye, ma'am. Have a nice day, ma'am. Good Bye, day. bye. Have a nice day, ma'am. Namaste, ma'am. Have a nice Bye, day. ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.